کتاب لکھیں گے، زبور کی کتاب، اور زبور نمبر 19 ہے، 19 نمبر 19 پلیز جن کے پاس کلام مقدس ہے ضرور کھولیے گا، زبور کی کتاب اور زبور نمبر 19 اور اس کی 7ویں آیت ہے۔ جی کوئی بھی بلند آواز کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہے؟ قرآن یسوع مسیح کے قدوس اور رحیم شفیق نام میں تمام حاضرین کو آج کی رات، آج کی شام بہت بہت سلام۔ شکر گزار ہے اپنے زندہ خدا کے کہ جس نے مجھے آپ لوگوں کو یہ آج کے خوبصورت لمحات بخش دیے۔ زندگی میں ہم اکثر دیکھتے ہیں ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں یا ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ اکثر دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک شخص وہ تھا جس کو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا زبردست صحت مند تھا، لیکن اچانک جب چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں سالوں کے بعد دیکھا اور وہ کافی بیمار ہے یا کسی پریشانی میں ہے۔ اب وہ شخص جو ایک وقت تھا کہ وہ تندرست تھا اور وہ صحت مند تھا، لیکن اچانک جب وہ بیمار پڑ گیا یا کسی اور مصیبت میں گر گیا یا تندرستی میں یا اور کسی چیز میں بھی وہ پھنس گیا، اور اب اس کے اندر ایک امید ہے کہ وہ کیسے بحال ہو جائے، وہ پھر سے اس جگہ پر آ جائے، پھر سے وہ صحت مند ہو جائے، پھر سے اس کے گھر میں شادمانی آ جائے، پھر سے اس کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں، اور وہ اپنے خاندان میں اپنی زندگی میں بحالی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ بحالی چاہتا ہے۔ تو آج کی رات ایک خاص بات ہے اور آپ لوگ سیکھیں گے کہ ہم سب بھی کسی نہ کسی جگہ پر گر جاتے ہیں یا گرے ہیں یا پرابلم میں ہیں یا کسی نہ کسی پریشانی میں ہیں، لیکن ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم سب بحال کیے جائیں۔ ہم سب کیا کیے جائیں؟ بحال کیے جائیں۔ لیکن اس بحالی کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک راستہ ہمیں چوز کرنا ہے جس سے ہم بحال ہو سکتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے کہ بحالی کا حقیقی راستہ، بحالی کا حقیقی راستہ، کیونکہ اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے ایسے عزیز جب کسی پرابلم میں گر جاتے ہیں، کسی بیماری میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، تو ان کو بہتر یا حقیقی راستہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ پہلے سے بھی زیادہ پرابلم میں آ جاتے ہیں، وہ پہلے سے بھی زیادہ تنگی تکلیف میں آ جاتے ہیں، وہ پہلے سے بھی زیادہ برباد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بہتر راستہ نہیں ملا۔ مثلا یہ کہ جب ہم بائبل مقدس میں سے بھی اور دائیں بائیں بھی دیکھتے ہیں، بہت ساری مثالیں میرے پاس ہیں، لیکن میں اپنے ٹائم میں رہ کر اسے ختم کروں گا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ بہت سے کوئی ایسا شخص ہو، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان بیمار پڑ جاتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے، اور اب وہ تو چاہتا ہے کہ میں پھر سے صحت مند ہو جاؤں، جیسے میں پہلے بھاگتا تھا ویسے میں بھاگنے والا ہوں، جیسے میں پہلے کسی چیز کو پکڑ کر ادھر فوراً کر دیتا ہوں اور ایسے میں اب کروں کہ ابھی تو یہ چیز نہیں پکڑی جاتی، جیسے میں پہلے یہ پنکھے کو اٹھا کر ادھر ادھر لے جاتی، اب میں اٹھا نہیں سکتا، جیسے میں پہلے دیکھ سکتا تھا اب میں دیکھ نہیں سکتی، جیسے میں پہلے جو جیسے چاہتا تھا اور چیز خرید سکتا تھا لیکن اب نہیں خرید سکتا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں، اب میں تنگدستی میں گرفتار ہوں۔ جیسے میں پہلے اپنے گھر میں رہتا تھا، اب میں کسی کے گھر میں رہتا ہوں۔ یعنی کوئی بھی آپ چیز لے لیں، بحال ہونا چاہتے تو کئی دفعہ کہا جاتا ہے جو بیمار ہے اور کہتے ہیں او چلو جی وہ فلاں شخص وہ کو جاننا ہے، وہ بڑا وہ سیاڑا بندہ ہے اور بڑے جن میں کہ وہ کرامات ہوتے ہیں۔ اچھا جاتے ہیں اپنی بحالی کے لیے کا جاتے ہیں، اکثر آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہیں، کچھ لوگوں کو جو تجربہ آیا ہوگا، میں نے بھی ایسے واقعات سے میں بھی واقف ہوں کہ کئی دفعہ اچھا جی وہ فلاں جو ہے نا اس کے پاس چلا جائے اور وہ تو جن میں کہ
किस्मत ही बदल देता है। क्या बदल देता है? किस्मत बदल देता है। तो जब उसके पास जाते हैं और उसके साथ में खुद जुड़े होती है, ठीक है, जाके गाड़ी में खुद सीखते हैं कि वो गंदगी होती है और बालों में और बदन जो कपड़ों में से बदबू आ रही होती है। हाँ जी, साड़ी किस्मत बदल दे, तो आप ही बदली है, गाड़ी किस्मत की बदलेगा, ठीक है। जो खुद से ही गंदगी में है वो हमें सफाई पे कैसे लेकर जाएगा? जो खुद ही जकड़ा हुआ वो कैसे हमें आजाद करेगा? जो खुद बहाल नहीं वो कैसे हमें दूसरों को बहाल कर सकता है? नहीं कर सकता। और जब हम बाइबल कस्मे से देखते हैं तो एक वो औरत जो 12 साल से दर बदर जा रही है, दर बदर है, कभी किसी के पास जाकर कभी बकरा लाया, कभी ना पैसा लाया, कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, और इस तरह से बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने घर का सब कुछ बेच चुकी, खत्म कर चुकी, और अब तबीबों से भी वो तंग पड़ चुकी है। किसके लिए? सब कुछ उसने लौटा दिया अपने भाई के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, लेकिन कहीं से भी उसे तंदुरुस्ती ना मिली। आज भी बहुत सारी ऐसी बेटियां, हमारी माएं, हमारी बहनें घरों से छुप कर कहीं कहीं जा रही हैं, साढ़े घर ना पता चले कहाँ ये मुमताज तो सही है कि तुम जरा मेरा हाल कितने है, ठीक है, वो तो जाने आखिरकार क्या जाता, हाँ जो पहुंचे ऐसा करना ते अगले जो फेरे आए 10,000 ना लेके 25,000 ना लेके, अब वो क्या करते, छुप कर शोहरों से, बच्चों से, जिन्हें वो उनको नॉलेज में नहीं होता, इधर से पकड़ या कुछ कर नहीं, मैं अपने कारवा से अपने से करना ही करना है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, पकड़ चाहिए तो कुछ किया, अच्छा निकल के आइए कुछ काम हो गया, कुछ रहता है 25,000 हो रहा है, अच्छा 25,000 हो, चलो जो काम को चलेगा वो करना ही है ना, वो कुछ ले गए, फिर वो इसी तरह से चली, लेकिन होता फिर भी कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि जिसके पास जा रहे हैं उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास भारी नहीं है, वो खुद भी बाहर नहीं है, ठीक है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में सुनिएगा, बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर वाज़ह तौर पर मैं पूरी आयत के अगर एक एक चीज़ पर मैं बोलूँ तो मेरा ख्याल काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन सिर्फ मैं भारी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको लिखा है कि खुदावंद की शरीयत कामिल है, खुदावंद की शरीयत कामिल है। कामिल क्या मतलब है? मतलब कि इसमें कोई कमी, इसमें कोई कमी नहीं है, वो कामिल है, बिल्कुल कामिल है, जब इसमें कोई 19-20 का भी फर्क नहीं, ठीक है। कामिल है मतलब मुकम्मल है। खुदावंद की शरीयत क्या है? कामिल है, यानी कि खुदावंद के आयन, खुदा का कलाम, खुदा के मुंह की बातें वो कामिल है। क्यों कामिल है? वजह इसलिए कि जिसकी शरीयत है वो कामिल है, जिसकी शरीयत है वो कामिल है। अब जब वो कामिल है, उसका कलाम कामिल है, उसकी शरीयत कामिल है, तो फिर जो कामिल है तो वही हमें बहाल कर सकता और कर सकती है, और किसी में जरूरत नहीं है। जो खुद कामिल नहीं है वो कैसे दूसरे को कामिल कर सकता, बहाल कर सकता? जो खुद लड़ाकर चलता है या चलते दूसरों को कैसे कहा मैं तुझे भगाऊं? कोई हो सकता है? नहीं। ये तो अगले को धोखा देने वाली बात है। वही कुछ कर सकेगा जिसके पास कुछ है। इसलिए याद रखना, मेरा ईमान, मेरा अकीदा एक मसीह होने के नाते से मुकम्मल होना चाहिए। अगर कामिल खुदा है, कामिल शरीयत है, उसका कलाम कामिल है, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और आप लोगों का खुदावन कि ये इसी कामिल है और कोई भी कामिल नहीं है। कोई भी बड़े से बड़े बादशाह, पैगंबर, नबी आए, कहीं ना कहीं वो कमजोर है, कामिल नहीं है, कोई ना कोई उनमें कमी कमजोरी पाई जाती है। लेकिन अगर नहीं पाई जाती तो मेरे और आप लोगों के मसीह का भी कोई कमी नहीं पाई जाती, क्योंकि वो क्या है? हमारे मसीह में कामिल है। और यही वजह है कि कोई घंटा नहीं लगा, कोई 2 दिन नहीं लगे, कोई ये नहीं कहा कि तू मेरे लिए 20,000 ले आ, 30,000 ले आ, मैं सिर्फ क्या कहता हूँ तू शफा पाएगी, शफा पाएगा। इतने ईमान के साथ आते सिर्फ उसका पल्लू ही छू, कैसा क्या कहती है? सिर्फ उसका, उसकी पोशाक ही, पोशाक का किनारा छू लूंगी तो मैं शफा पाऊंगी। सब कुछ बेच चुकी है। अब जब
दर बदर होकर वो नाकाम हो चुकी है, तो उस कामल हस्ती के पास आ जाती है और आकर जैसे ही पल्ला छूती है, साथ ही मालूम हो जाता है कि मुझे किसने छुआया, किसने छुआ, गिर गई और रोने लगी, कहने लगी देख मैं सब कुछ लुटा चुकी, अब मेरे पास और कुछ नहीं है उनको देने के लिए। मेरा ख्याल है अगर कुछ होता तो अभी भी यीशु के पास आती, जब तक मैं सोचता हूँ कहती सब कुछ लुटा चुकी, तो अगर कुछ और होता तो शायद अभी भी ना आती। जब लुट चुका अब कुछ भी नहीं है तो फिर वो यीशु के पास आ चुकी है। कई दफा ऐसे भी हो जाता है जब हम दर बदर जाकर जिसे जिन्होंने कहना किससे काम देना रहना गोल्डे गिरता तो रह जाना तो सब कुछ हम फिर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक वक्त का चीज़ का एक वक्त उस औरत का एक वक्त था कि वो बाहर होना चाहती है। अब भाभी के लिए उसने अपनी अकल को यूज़ कर ली, अपना रुपया पैसा भी यूज़ कर लिया। कई दफ़ा हम अपने रुपये पैसे पर बड़ा तकिया करते हैं, कोई गल नहीं बीमार हो जाता तो बड़े बड़ा डॉक्टर पेड़ ना मुँह सिहायत कर लेंगे, पैसे पर बड़ा ईमान है। कई दफ़ा साढ़े तलों का नहीं बड़े इधर ही उधर लै जाएंगे इधर लै जाएंगे, कई दफ़ा खुदा यहाँ से बाहर निकलेगा कि नहीं। बेशक बड़े डॉक्टर होंगे, बेशक बड़े तलबकार क्यों ना हो, बेशक आपके पैसे बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, जब खुदा की बात है तो वहाँ पर ना तो पैसा ना चाहिए, तो उसकी बात के साथ ही सब कुछ हमें। तो इसलिए उसकी शरीयत का अमल है वो क्या करती है, हमें बहाल करती है। अगर बुखार है तो वही उसी कैसे से बुखार जाता है, अगर जादूगिरी है तो कोई और ऐसी हस्ती नहीं है कि जो हमें उसमें से निकाल सके, वही उसका कलाम, उसका बेटा खुदा यीशु मसीह, उसका नाम जो कुदरत वाला उसी के नाम से बोले और जादूगिरी काला गोरा एवं सब खत्म हो जाता है। आमीन। लेकिन क्या है वजह ये है कि हमें उस पर ईमान रखना, सिर्फ वजह एक ही है, उस रास्ते को चूज करना पड़ता है। ये नहीं कि मैं उधर जा रहा, अच्छा जी पास मैं चला जाए उठे तो साढ़े वास्ते रोजे रखियो जी, साढ़े वास्ते क्या रखियो शफा तुसा पानी भुखा पाली बेचारा रहे तो चाहिए तो कुछ देर मतलब कि जो कुछ भी पाली साथ कर देना साहब ठीक है, वो चंदा को ज़्यादा दे हटा दे भाई, ऐसे भी काम चल, ठीक है। और तो ना ये हाँ ठीक है, आपके साथ मिलकर खादम दुआ में चुक सकता है, आपके साथ मिलकर खुदा के हुजूर शफायत कर सकता है, आपको रहनुमाई दे सकता है। लेकिन ये नहीं है कि आप ही जाके जिन्हें वो कितने ऐसी शादी पे चले तो बड़ी आला शादी है आज रोज़ा ही रख सकते पार्टी में रखा ही है नहीं, ठीक है। और हमें खुदावंद की हजूरी में उसको वो जलाल देना चाहिए जो उसका है, जो उसका मकाम है उसे मकाम देना चाहिए। तब जाकर देखिए कि बाहर होते हैं, फिर देखिए कि हमारे अंदर से टीबी की बीमारी जाती है क्या, फिर देखिए हमारे अंदर से हर तरह का रोग जाता है। मुझे याद है लास्ट टाइम एक आज वो भाई ऐसे हर फ्राइडे में आते हैं, आज भी आए, वो एक भाई थे और पता नहीं कितनी देर से वो पता चला कई सालों से वो झगड़ा हुआ था, ठीक है। और उसने भाई भी दी, भाई बीन की बात करो, ठीक है। और कई सालों से झगड़ा पता ही नहीं चल रहा, लेकिन अचानक जब हुआ घर में किधर की और जब इस माहौल में आया तो वो जो अंदर चीज़ थी उसे आप वो ठहर ना सकी, मैं कितने आ गया कर इधर दोबारा कुछ हो गया। आखिरकार वो मेरी बहन बैठी के पास कोशिश करो हम सही नहीं दुआ करो, मैं पहले हमने सही वाली लेकर चलो और इसलिए ये करना है कि टीम ना रहो सदा मिलकर करना है। उस बहन का ईमान के वाकई जब यहाँ पर दुआ की गई और खुदा ने उसको आज़ाद किया, खुदा ने उसको क्या किया, बहाल किया, क्या किया, बहाल किया, उसे आज़ाद कर दिया। खुदा ऐसा करता है। लेकिन बात क्या है, मैं इसलिए कहता हूँ कि सिर्फ पादी ने जोर ना लगाते रहे, हमने लगाया जोर, लेकिन वो खानदान में मिलकर खुदा की जिंदगी जुट गया, ठीक है। उन्होंने भी कहा कि हाँ हमारा खुदा हमें शिफा दे सकता है और हमें बाहर कर सकता है। और खुदा ने क्या चाहती मैं तेरे लिए करूँ, वो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ, मतलब कि दोनों तरफ से, ठीक है। अब वो औरत जो एक गुनाह में जकड़ी है, बदकारी में जकड़ी है, लोग मारने के लिए पीछे, आप शायद वो समझ के आज बस मेरा आदमी देना आपकी लम्हात आ गए और पत्थर ने ना मार के तो मनो ना बादशाह था। अब उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं, अचानक बहाल करने वाला सामने आ जाता है और चुप जाती है, सारे लोग रुक जाते हैं, क्या हो गया है, आओ वो पहले पत्थर मारे जिसने कभी भी गुनाह न किया।
अब वो भी औरत गुनहगार है, बदकार है, लेकिन यीशु के चरणों में आ चुकी है और आकर कर यीशु ने कहा कोई किसी ने अब तुझ पर पत्थर चलाया नहीं, कोई मैं भी तुझे गुलामत नहीं करता, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता, जा आइंदा गुलाम। मतलब क्या है? यीशु इसको बढ़ा दिया, यीशु ने उसको, वो कामल है, उसने कहा जा आइंदा गुनाह कर, मतलब सारे गुनाह पहले माफ हो गए, और इसलिए वो कुदरत वाला वो कामल है, वो माफ करता है, वो शिफा देता है, और वो हमें संभालता है, वो हमें रोटी और पानी पर घर पे डालता है, वो 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाना चाहता है, ठीक है, वो हमारे थोड़े में बरकत देना चाहता है। हम थोड़ा क्यों ना कमाएं, लेकिन उसकी हजूरी में रहकर कमाएंगे, उसमें ब्लेसिंग है हमारे लिए। इसलिए मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, हम मसीही होने के नाते से कभी भी किसी भी जगह पर गिर सकते हैं, इंसान है, कभी कभी कमजोरी आ सकती है, लेकिन ध्यान से यीशु पर रखें जो काबिल शिद्दत है कि वही हमें बहाल कर सकता है, उसमें भाली है, क्योंकि वो काबिल है।